وہ ایک بڑا سا آفس تھا جسے دیکھ کر اس کے مالک کی دولت مند ہونے کا احساس خود بخود ذہن میں ابھرنے لگتا تھا۔ کمرے کے ایک حصے میں بڑی سی جہازی سائز ٹیبل تھی جس پر دفتری استعمال کی مختلف چیزیں، قلم دان، پیپر ویٹ، کیلنڈر وغیرہ اور کچھ فائلز رکھی تھیں، جبکہ دوسرے حصے میں صوفہ کم بیڈ کے علاوہ ایک فل سائز کا شاندار صوفہ اور ٹیبل رکھی تھی۔ صوفہ کم بیڈ کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس آفس کا مالک کام کے دوران وقت نکال کر یہیں آرام بھی کر لیا کرتا ہوگا۔ اسی سے یہ بھی اندازہ ہوتا تھا کہ یہ شان و شوکت یوں ہی ہاتھ نہیں آ گئی تھی، یقیناً اس کے پیچھے شدید محنت اور سوچنے والا دماغ بھی موجود رہا تھا۔ اس وقت ہارون اپنے آفس میں اکیلا تھا۔ وہ خود بھی بلا شبہ شاندار شخصیت کا مالک تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، گندمی رنگت، کالی بھنور آنکھیں اور جم میں گزارے گئے روزانہ کے وقت کے نتیجے میں حاصل کیا گیا بے حد سیلول مضبوط جسم کسی بھی انسان کو اپنی طرف متوجہ کر لینے کے لیے کافی تھا۔ اوپر سے اس کے بولنے کا انداز یوں جیسے سحر پھونک رہا ہو، سننے والا لمحوں میں اس کا قائل ہو جاتا تھا۔ شاید اس کا یہ لب و لہجہ ہی اس کی ان گنت کامیاب بزنس ڈیلز کی وجہ بنا تھا۔ اس وقت وہ اسکائی بلو شرٹ کے ساتھ بلیک ٹو پیس میں ملبوس تھا، دونوں بازوؤں کو آستین کی کوہنی تک فولڈ کر رکھی تھی۔ وہ پوری طرح اپنے سامنے کھلی فائل میں کھویا ہوا تھا جب انٹرکام کی گھنٹی نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ سر، آج ارباز صاحب کے ساتھ آپ کا لنچ ہے۔ دوسری طرف سیکریٹری اپنے پیشہ ورانہ انداز میں اسے یاد دہانی کراتے ہوئے اپنی ڈیوٹی نبھا رہی تھی۔ تھینک یو مس ہما، ڈرائیور سے کہیں 10 منٹ بعد گاڑی تیار رکھے۔ ہارون نے اپنے مخصوص لہجے میں جواب دیا اور ریسیور واپس رکھ کر ایک بار پھر فائل میں گم ہو گیا۔ پورے 10 منٹ بعد وہ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ رہا تھا۔ سیٹھ فاروق شیخ شہر کا ہی نہیں بلکہ ملک کا ایک بڑا نام تھا۔ بزنس کی دنیا میں ان کی سمجھ بوجھ اور کامیابیوں کی کئی داستانیں سننے کو مل سکتی تھیں۔ ہارون ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ روایتی نوجوانوں کی طرح اپنے باپ کے پیسے پر عیش کرنے کے بجائے اس نے اپنے کالج کے دنوں میں ہی آفس آنا شروع کر دیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ تعلیم پر مکمل توجہ ہونے کی وجہ سے وہ آفس کو بہت زیادہ وقت نہیں دے پاتا تھا، لیکن کاروبار کی شدھ بدھ حاصل کر چکا تھا۔ سیٹھ فاروق کو اپنے ہونہار بیٹے پر فخر تھا، جس نے تعلیم کے میدان میں ہمیشہ سب سے آگے رہ کر انہیں فخر کرنے کا موقع دیا تھا۔ ہارون کی زندگی صرف پڑھائی اور بزنس کی حد تک محدود نہیں تھی، بلکہ وہ کئی ساری گیمز میں بھی چیمپئن سمجھا جاتا تھا۔ کل ملا کے وہ کسی افسانے کے ہیرو والی سبھی خوبیوں کا حسین امتزاج تھا، لیکن ان سب چیزوں نے مل کر بھی اس کی نرم مزاج طبیعت پر کوئی منفی اثر نہیں ڈالا، بلکہ وہ ہنسنے ہنسانے والا، دوسروں کی تکلیف کو اپنے دل پہ محسوس کرنے والا یہ حساس انسان اور اس کی خوبصورت اور پرسکون زندگی اس وقت دکھ اور درد کی تصویر بن گئی جب ایک ایکسیڈنٹ میں ہارون کی ماں اور باپ ایک ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ لوگ جو آج تک اس کی خوش قسمتی پر رشک کرتے آئے تھے، آج اس کی بدقسمتی پر افسردہ تھے۔ ایسے میں کئی اپنے اپنائیت کی آڑ میں بزنس پر قبضہ جمانے کے لیے ہارون کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے، تو اپنے کچھ مخلص لوگوں کے احساس دلانے پر ہارون کے اپنے دکھ سے باہر آ کر دنیا داری کو دکھانا ہی پڑا۔ اور جب اس نے اپنے رویے سب کو یہ احساس دلا دیا کہ ان کے لیے یہاں کچھ نہیں ہے، تو سارے اپنے یکدم ہی اجنبی بن کر دور رہنے لگے۔ اس طرح ہارون یکدم تنہائی کا شکار ہو گیا۔ ایسے میں اس کے کچھ دوست تھے جنہوں نے اسے اپنے ہونے کا احساس دلا کر اسے تنہائی کے جنگل میں گم ہونے سے بچایا۔ انہی دوستوں میں سہر فہرست مبشر کا نام تھا۔ مبشر ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ ہارون کا کلاس فیلو بھی تھا اور اس کا بیسٹ فرینڈ بھی۔ دونوں ایک دوسرے کے مزاج آشنا تھے۔ یہی وجہ تھی جب ماں باپ کی اچانک موت کی وجہ سے ہارون کی پڑھائی ادھوری رہ گئی اور وہ جو باہر جا کر پڑھنے کا خواہش مند تھا، اپنے شہر کی یونیورسٹی میں بھی داخلہ نہ لے سکا۔ اس کے باوجود ہارون اور مبشر کی دوستی نہ صرف قائم رہی بلکہ پہلے سے بڑھ کر مضبوط ہوتی چلی گئی۔ بزنس لنچ اور کامیاب ڈیل کرنے کے بعد وہ ہوٹل سے نکلا تو اس کے چہرے پر سکون ہونے کے باوجود اس کے ہونٹ مسکراہٹ سے آری تھے۔ اسے آتا دیکھ کر ڈرائیور نے پچھلی طرف کا دروازہ کھول دیا۔ وہ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا پچھلی سیٹ پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی زندگی کے اکثر دنوں کی طرح وہ بھی ایک مصروف دن تھا۔ ابھی اس نے ایک اور میٹنگ کے لیے جانا تھا۔ کچھ دیر ریلیکس ہونے کے خیال سے اس نے آنکھیں موند کر سر کو سیٹ پر ٹیک دیا۔ بظاہر سکون کرتے ہوئے بھی اس کا ذہن کچھ دیر بعد ہونے والی میٹنگ میں کی جانے والی باتوں کے بارے میں ہی سوچے چلے جا رہا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر جیسے ہی خود کو ان سوچوں سے آزاد کرانے کی کوشش کی اور گاڑی سے باہر بھاگتے مناظر پر نظر جما دی۔ مناہل اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے بڑا سا سوٹ کیس کھلا رکھا تھا اور وہ بیڈ پر اپنے ارد گرد بکھرے کپڑوں اور دوسری چیزوں کو باری باری اٹھا کر سوٹ کیس میں رکھ رہی تھی جب ملیحہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بیٹا،
सब चीज़ें याद से रख लेना, कुछ रह ना जाए। मलिहा ने सूटकेस और बेड पर बिखरी चीज़ों पर नज़र डालते हुए मनाहिल को मुखातिब किया। डोंट वरी मॉम। मनाहिल ने अपने काम में मसरूफ़ होते हुए माँ को तसल्ली दिलाई। वैसे आप तो ऐसे परेशान हो रही हैं जैसे पाकिस्तान में कुछ मिलता ही ना हो। इतना सब कुछ दिलाया आपने, पैकिंग से तंग आई। मनाहिल कहे बिना ना रह सकी। मिलता सब कुछ है, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, तुम्हें शॉपिंग की बिल्कुल समझ नहीं। ना जाने क्या उल जुलूल खरीद कर पहन लो और खामखा अम्मा जी से हमें डांट पड़े। मलिहा ने अपना खदशा बयान किया। कितनी अजीब बात है मॉम, आप दादू से कितना डरती हैं। मनाहिल हंसते हुए कह रही थी। डरती नहीं हूँ, एहतराम करती हूँ उनका और मोहब्बत करती हूँ उनसे, इसलिए उन्हें खफा नहीं करना चाहती, समझी। मलिहा उसकी पैकिंग में उसकी मदद कराते हुए मुस्कुराकर बोली। तो मनाहिल ने फ़ख्र से और मोहब्बत भरी नज़रों से अपनी खूबसूरत पढ़ी लिखी माँ को देखा, जो इतने साल अमेरिका में गुजारने के बावजूद पाकिस्तान से कुछ इस तरह से जुड़ी रही थी कि ये फासले भी उन पर कोई असर नहीं डाल पाए थे। मनाहिल 20-21 साल की एक खूबसूरत लड़की थी। वो कुछ दिन पहले मास्टर्स के आखिरी सेमेस्टर के पेपर देकर फारिग हुई थी। उसकी पैदाइश अमेरिका की थी, इस तरह उसका मुल्क अमेरिका था, जबकि उसके माँ बाप मलिहा और जमाल दोनों पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे। अमेरिकन एक्सेंट रखने वाली और जीन्स शर्ट पहनने वाली मनाहिल उर्दू में इतनी अच्छे तरीके से बोलती थी कि बहुत से पाकिस्तानी भी इतनी अच्छी उर्दू नहीं बोल सकते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके माँ बाप ने उसे हमेशा ये बात याद दिलाई रखी थी कि वो एक पाकिस्तानी लड़की है और एक दिन उसे अपने वतन लौटना है। ये बात वो इतने तसल्सल से सुनती आई थी कि उसे लगने लगा था उसकी अपनी सोच और ख्वाहिश भी यही है कि वो पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारे। मलिहा और जमाल दोनों क्लास फेलो थे। उनकी मोहब्बत ने सारे फासले मिटाकर, सारी रवायात से टकराकर उन्हें एक कर दिया था। मनाहिल ने लाइट ब्राउन आंखें बाप से चुराई थीं, जबकि उसकी नाक और होंठों की बनावट बिल्कुल मलिहा जैसी थी। यही वजह थी कि मलिहा और जमाल को जानने वाला कोई भी शख्स मनाहिल को देखकर बआसानी पहचान सकता था कि वो उन दोनों की बेटी है। और अब जबकि वो अपना मास्टर्स मुकम्मल कर चुकी थी, तो वो पाकिस्तान अपनी दादी खुर्शीदा बेगम के पास पाकिस्तान जा रही थी। मलिहा और जमाल का प्लान ये था कि पहले मनाहिल को पाकिस्तान भेज दिया जाए और फिर धीरे धीरे अपना कारोबार समेटकर वो भी वतन वापस लौट जाएं। शायद इस प्लान के पीछे कहीं कुछ ना ये डर भी था कि किसी वजह से उनकी अमेरिका में पली बड़ी बेटी पाकिस्तान के माहौल में एडजस्ट ना कर सके और वापसी का मुतालबा कर दे। इसी खौफ से वो पहले बेटे को पाकिस्तान में सेटल करना चाहते थे। अब प्लान के पहले हिस्से में अमल करते हुए मनाहिल को गाँव भेजा जा रहा था। मनाहिल बेटा, कोई ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारी दादू खफा हो। उन्हें खूब खुश रखना। उन्हें किसी भी बात से ये नहीं लगना चाहिए कि हमने तुम्हारी तरबियत अच्छे से नहीं की। मलिहा ने कई बार की कही बातें एक बार फिर तफसील से दोहराईं। वो लोग इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद थे। कुछ ही देर में मनाहिल पाकिस्तान के लिए रवाना होने वाली थी और मलिहा अपने खदशात की बिना पर बार बार मनाहिल को समझाए जा रही थी। अरे बस करो यार, हमारी बेटी हमसे ज़्यादा समझदार है, तुम्हें इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जमाल ने मलिहा के कंधे पर हाथ रखकर उसे खुद से करीब करते हुए कहा। पापा बिल्कुल ठीक कह रही हैं मम्मा, आप देखेंगे दादू मुझे कितनी खुश होती हैं देखकर। इतनी प्यारी और समझदार पोती की तवक्को नहीं होगी उन्हें। माहौल की संजीदगी को तोड़ने की कोशिश करती मनाहिल ने शरारत से कहा। तो मलिहा और जमाल के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। अपना बहुत ख्याल रखना बेटा, हम तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। मनाहिल के इतनी दूर जाने का सोचकर वो दोनों ही बहुत उदास हो रहे थे और उदासी तो मनाहिल के दिल को भी घेरे हुए थी, लेकिन माँ बाप का ख्याल करते हुए उसने बहुत कोशिश करके अपना मूड लाइट रखा हुआ था। जाने का टाइम हो गया तो मनाहिल माँ बाप के गले लगकर खुदाफिज कहती अंदर चली गई और वो दोनों वहीं खड़े उसे जाता हुआ देखते रहे। चलो घर चलते हैं। मलिहा बेगम गुमसुम सी इस तरफ नजरें जमाए खड़ी थी जहाँ से अभी अभी मनाहिल गुजर कर गई थी। तभी जमाल की आवाज़ ने उनका इर्तिकास तोड़ा तो आंखों से बह जाने वाले आंसुओं को हाथों की पुश से साफ करती जमाल के साथ बाहर की तरफ चलने लगी। ना करो यार, वरना मैं भी रो दूंगा और तुम्हें पता है मैं कितना बुरा रोता हूँ, जमाल ने हल्के फुल्के अंदाज में कहते हुए वार्न किया। तो वो ना चाहते हुए भी मलिहा ने होंठों पर मुस्कुराहट सजा ली। दोनों मनाहिल के बारे में बातें करते हुए पार्किंग की तरफ बढ़ने लगे जहाँ उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी। वो जो ज़िंदगी में पहली बार माँ बाप से जुदा हुई थी, अब तक अपने आंसुओं को बहने से रुकती आई थी, लेकिन जहाज़ में अपनी सीट पर बैठते ही उसे अपने आप पर काबू पाना मुश्किल हो गया और अब वो एक छोटी बच्ची की तरह आंसू बहा रही थी। आर यू ऑल राइट? उसके साथ वाली सीट पर बैठी खातून उसके इस तरह रोने पर उसकी तरफ मुतवज्जो हो गई। यस आई एम फाइन। खातून के इस तरह मुतवज्जो होने पर मनाहिल शर्मिंदा महसूस होती हुई बोली, मेरा नाम आलिया है, लेकिन तुम मेरी बेटी की उम्र की हो, इसलिए मुझे आंटी कह सकती हो। खातून ने मुस्कुराते हुए तारुफ करवाया। थैंक यू, मैं मनाहिल हूँ। जवाब में मनाहिल भी तारुफ करवाना पड़ा।
کس کے پاس جا رہی ہو؟ عالیہ نے اگلا سوال کیا۔ ویسے تو پاکستان میں بہت سارے رشتہ دار ہیں، لیکن میں اپنی دادو کے پاس جا رہی ہوں، مناہل نے اس بار ذرا تفصیلی جواب دیا۔ اور تمہارے ممی پاپا؟ عالیہ نے مزید پوچھا۔ وہ یہیں رہتے ہیں، ان کو چھوڑ کر پہلی بار اتنی دور جا رہی ہوں، اس لیے اتنی اداس ہوں۔ مناہل اپنے رونے پر شرمندہ ہوتی جیسے وضاحت دے رہی تھی۔ تمہارے ماں باپ بہت لکی ہیں جنہیں اتنی پیاری اور اچھی بیٹی ملی ہے، ورنہ آج کل کے بچوں کی اکثریت ماں باپ کو صرف اپنے معاملات میں دخل اندازی کرنے والی مخلوق سمجھتی ہے اور اسی لیے ان سے ایک فاصلے پر ہی رہنا چاہتی ہے۔ عالیہ کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ اکثر لوگوں کی طرح انہیں بھی نئی نسل بہت سے شکوے تھے۔ فکر مت کرو، میں نئی نسل کی برائیاں کر کے تمہیں بور نہیں کروں گی۔ عالیہ کو خود ہی احساس ہوا تو مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، میں بالکل بور نہیں ہوں گی، آپ جس موضوع پر چاہیں بات کر سکتی ہیں۔ آپ کی وجہ سے میں بہت اچھا فیل کر رہی ہوں، ورنہ شاید سارا سفر روتے ہوئے ہی گزار دیتی۔ مناہل نے ہنستے ہوئے کہا تو عالیہ بھی ہنس پڑی۔ دونوں ایک دوسرے کی کمپنی پسند آئی تھی، اس لیے دونوں کی امید تھی کہ ان کا سفر بہت اچھا گزرنے والا تھا۔ گاؤں میں مناہل کے استقبال کی تیاریاں بڑے زور و شور سے کی جا رہی تھیں۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ خورشید بیگم نے جیسے پوتی کے آنے کی خوشی میں پھر سے جوان ہو گئی تھیں۔ ساری بیماریاں جو ان کی جان کو کھائے رکھتی تھیں جیسے کہیں گم ہو گئی تھیں۔ ہر کام اپنی نگرانی میں کرواتی۔ خورشید بیگم کو دیکھ کر لفظ خوشی کا درست مطلب بآسانی سمجھا جا سکتا تھا۔ یہ خوشی صرف مناہل کی آمد کی نہیں تھی، بلکہ یہ اس امید کی بھی تھی کہ ان کا لاڈا بھی وطن واپس لوٹنے کو ہے، اور یہ خورشید بیگم ہی جانتی تھیں کہ انہوں نے اس دن کا کتنا انتظار کیا تھا۔ خورشید بیگم ذمہ دار خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود اس زمانے میں بھی یونیورسٹی تک پڑھی تھیں، جب لڑکیوں کے لیے بھی صرف قرآن پڑھ لینا کافی سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے فلسفے جیسے مشکل سبجیکٹ کو چنا تھا اور اس میں پی ایچ ڈی کیا۔ اس کے علاوہ بھی وہ بہت ایکٹیو خاتون تھیں۔ شاعری سے انہیں بہت شغف تھا، کئی بار خود بھی شعر کہہ لیا کرتی تھیں، لیکن انہوں نے کبھی اس صلاحیت پر اپنا دھیان نہیں دیا تھا، ورنہ ان کی کئی کتابیں مارکیٹ میں آ چکی ہوتی۔ ان کی شادی ان کے چچا زاد سے اس وقت ہو گئی تھی جب انہوں نے اپنا ماسٹر مکمل کیا تھا۔ حالانکہ ان کے خاندان میں بہت چھوٹی عمر میں شادی کا رواج تھا، لیکن ان کا شوق دیکھتے ہوئے انہیں اتنا پڑھنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ مناہل کی فلائٹ شام 6 بجے لینڈ کرنا تھی۔ گاؤں پہنچتے پہنچتے 1.5 سے 2 گھنٹہ اور لگتے تو خورشید بیگم کی خواہش تھی کہ وہ مناہل کو لینے ایئرپورٹ جائیں، لیکن جمال نے بار بار تاکید کی تھی کہ وہ بلا وجہ اتنا سفر نہ کریں اور گھر رہ کر مناہل کا انتظار کریں۔ آخر خدا کر کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور مناہل کو لانے والی کار حویلی کے گیٹ پر پہنچی۔ ڈھول باجے والوں نے گاڑی کو دور سے آتا دیکھتے ہی ڈھول بجانے شروع کر دیے تھے۔ مناہل جو حیرت سے ان سب چیزوں کو دیکھ رہی تھی، ڈرائیور کے دروازہ کھولنے پر دوپٹہ ٹھیک سے سر پر لیتی گاڑی سے نیچے اتر آئی۔ میری جان، میرا بچہ، کیسا رہا تمہارا سفر؟ اس کی گاڑی سے اترتے ہی خورشید بیگم نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ شلوار قمیض میں ملبوس مناہل، جس نے دوپٹہ بھی بڑے سلیقے سے اس طرح لیا ہوا تھا کہ دوپٹے نے اس کے سر کو ڈھانپا ہوا تھا، اسے دیکھ کر خورشید بیگم کا ڈھیروں خون بڑھ گیا۔ میں ٹھیک ہوں دادی جان، آپ کیسی ہیں؟ مناہل ان کی باہوں میں سمٹی ان کی محبت کی خوشبو کو محسوس کرتی عجیب سے احساسات کا شکار ہو رہی تھی۔ مناہل خاصی جذباتی اور حساس لڑکی تھی، وہ اپنی دادی کی محبت کی شدت کو محسوس کر سکتی تھی۔ دادی کے پیچھے رشتہ داروں کی لمبی قطار تھی، سب مسکراتے ہوئے اشتیاق بھری نظروں سے مناہل کو دیکھ رہے تھے۔ خورشید بیگم نے باری باری سب سے مناہل کا تعارف کروایا تھا۔ اتنی جلدی اتنے سارے نام، رشتے اور چہرے یاد رکھنا تو مناہل کے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن وہ سب سے سلام دعا کرتی دادی کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ اس مرحلے کے بعد کچھ لوگ بکرے لے آئے۔ مناہل نے مسکراتے ہوئے دلچسپی سے ان خوبصورت صحت مند بکروں کی طرف دیکھا، لیکن اسے ان کی وہاں موجودگی کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بیٹا، باری باری ان سب بکروں پر ہاتھ رکھ دو۔ خورشید کی ہدایت پر مناہل نے باری باری سب بکروں کو چھوا۔ انہیں لے جاؤ، ذبح کرو اور سارے گوشت غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دو۔ خورشید بیگم نے اپنی دبنگ انداز میں حکم دیا تو ملازم سر ہلاتے ہوئے بکروں کو وہاں سے لے گئے۔ اب مناہل کو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ بکرے اس کا صدقہ دینے کے لیے تھے۔ مناہل حویلی کے باہر کا حصہ دیکھ کر ہی مسحور رہ گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ گھوم کر ساری حویلی دیکھے، وہ سب جگہیں جو اسے ازبر تھی، کیونکہ وہ ان جگہوں کو تصویروں میں ہزاروں بار دیکھ چکی تھی اور اپنے ماں باپ کی باتوں میں ان سب کو محسوس بھی کر چکی تھی، لیکن اتنے لوگوں کی موجودگی میں یہ ناممکن تھا۔ اس لیے وہ سب کے لیے ہی تو جمع ہوئے تھے۔ سب نے مل کر کھانا کھایا جو کہ ڈھیروں سارے پکوان کی صورت میں تھا۔ رات گئے تک یہ محفل جمی رہی، پھر ایسا ایسا سب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تو خورشید بیگم مناہل کو ساتھ لیے اس کے کمرے میں چلی آئیں۔ دادو، یہ میرا کمرہ ہے۔ اپنا کمرہ دیکھ کر مناہل کو خوشگوار سی حیرت نے گھیر لیا۔ ایسا بیڈ روم تو اس نے امریکہ میں بھی نہیں تھا، بڑے سے بیڈ پر گلابی اور سفید کی امتزاج سے بنا
छप्पर खट जिसके चारों तरफ गुलाबी और सफ़ेद बारीक पर्दे और मोतियों की लड़ियां लटकी हुई थीं। खूबसूरत सी सिंगार मेज जो किसी लकड़ी की बनी हुई थी, उस पर मेकअप का ढेर सारा सामान सजा हुआ था। इस तरह एक तरफ राइटिंग टेबल भी रखी थी, साथ ही छोटा मगर बहुत खूबसूरत सा बुक रैक जिसमें कुछ किताबें रखी हुई थीं। वो बुक रैक इतना खूबसूरत था कि कमरे में सामान के बजाय एक डेकोरेशन पीस की तरह लग रहा था, और जगह की मुनासिब से रखे गए छोटे बड़े टेडी बियर और एक कोने में रखा बेहद खूबसूरत सा डोल हाउस कमरे को बड़ी खूबसूरती से दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। एक हिस्सा एक जवान लड़की का कमरा लग रहा था, जबकि दूसरे हिस्से को देखकर ख्याल आता था जैसे किसी नौउम्र लड़की के लिए कमरा सजाया गया हो। थैंक यू सो मच दादू, ये सब बहुत बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच, आई लव यू। कमरे की एक एक चीज़ का जायजा लेती मनाहिल खुर्शीद बेगम के गले लगी, मोहब्बत से कह रही थी, जो अब उन्होंने मनाहिल का माथा चूम लिया। तुम सफ़र से थक गई होगी, चलो अब तुम आराम करो, कल खूब सारी बातें करेंगे। खुर्शीद बेगम ने उसकी थकन का ख्याल करते हुए कहा, नहीं दादू, आपसे मिलकर मेरी सारी थकन दूर हो गई। आप प्लीज़ यहाँ मेरे पास लेटें। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि कभी आपकी गोद में सर रख कर लेटूँ। मनाहिल की बात पर खुर्शीदा मुस्कुराते हुए बेड पर बैठ गई। मनाहिल ने आगे बढ़कर उनके पाँव से जूते उतारे और उनकी टांगें उठाकर बेड पर रख दी। जीती रहो। खुर्शीद बेगम को उससे ऐसी किसी हरकत की तवक्को बिल्कुल नहीं थी, इसलिए दुआएं देते हुए उनके लहजे की हैरत को साफ महसूस किया जा सकता था। खुर्शीद बेगम के लेटने के साथ ही वो भी उनके करीब लेट गई और फिर बातें करते करते जाने कब उनकी आंख लगी और उसे बिल्कुल खबर ना हुई। उसके गहरे सांसों को महसूस करते हुए खुर्शीदा बेगम ने उसे पुकारा, लेकिन उसका जवाब ना पाकर होले से मुस्कुरा दी और उस पर कंबल ठीक करती उठकर अपने बेडरूम में चली आई कि अपने बिस्तर के सिवा उन्हें कहीं नींद नहीं आती थी। बिस्तर पर लेटने के बाद भी वो कितनी ही देर खुशकुन ख्यालात को सोचती रहीं, और गर्मियों की रातें होती तो यकीनन उनके जागते हुए सुबह की अजान हो चुकी होती, लेकिन ये सर्दियों की रातें थीं, लंबी काली पुरस्कून रातें, सारी थकन समेट लेने वाली रातें। सोते हुए भी खुर्शीद बेगम के होंठों पर मुस्कुराहट साफ देखी जा सकती थी। हारून ऑफिस के लिए निकलने से पहले हस्बे मामूल अपने माँ बाप की तस्वीर के सामने खड़ा था। ये कद आदम तस्वीर उनकी दुनिया से जाने के बाद किसी पेंटर से बनवाई गई थी। ऐसी ही एक तस्वीर उसने अपने बेडरूम में लगवाई थी। ओके मॉम, ओके डैड, अब मुझे इजाज़त दें वरना ऑफिस से लेट हो जाऊंगा, और मुझे पता है आप दोनों में किसी को भी मेरा लेट होना अच्छा नहीं लगेगा। हारून मुस्कुराते हुए तस्वीर से मुखातिब था। वो हमेशा अपने माँ बाप की तस्वीर से ऐसे ही बात करता था जैसे वो उसकी बात सुन रहे हों और जवाब भी दे रहे हों। उन्हें तो आपको अकेला रहना भी बहुत बुरा लगता होगा बेटा। वो आज यहाँ होते तो कब की तुम्हारी शादी करवा चुके होते, बल्कि अब तो 2-4 बच्चे भी घर में खेल रहे होते। रुकैया कहीं करीब ही थी, उसने हारून की सारी बातें सुनी थी और अब अपनी राय का इजहार कर रही थी। अरे रुकैया भी, क्या बात है आपकी, खड़े खड़े 2-4 बच्चे भी पैदा करवा दिए। हारून उसकी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। मेरी बात को हंसी में ना टालें साहब, शादी कर लीजिए, रुकैया बी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। कर लूँगा शादी रुकैया बी, कोई ऐसी लड़की तो मिले जो मेरे साथ साथ मामा बाबा को भी पसंद आए। हारून ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आज आप अपनी पसंद बता ही दीजिए, पता तो चले कि आपको कैसी लड़की चाहिए। रुकैया भी आज उसे आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं थी। सीधी सादी हो, एकदम मशरकी, और मज़हब को मज़हब की रूह को समझती हो, और हमें क्या चाहिए है मॉम। हारून ने जवाब देते हुए तस्वीर में मुस्कुराती हुई अपनी मॉम को मुखातिब किया। अल्लाह करे आपको जल्द ऐसी लड़की मिल जाए, लेकिन बेटा घर बैठे तो कोई लड़की मिलने से रही, ऐसे मामलात में किसी की मदद ली जाती है। रुकैया भी समझाने लगी। मिलनी होगी तो खुद ही अचानक कहीं मिल जाएगी रुकैया भी, अभी मुझे ऑफिस से बहुत देर हो रही है, इसलिए मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। वो जवाब देते हुए वहाँ से चला गया। बाहर पोर्च में उसका ड्राइवर गाड़ी के साथ तैयार खड़ा था। हारून की गाड़ी में बैठते ही उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। रुकैया भी हारून की पैदाइश से पहले उनके घर में थी, इस लिहाज से वो घर की सबसे पुरानी मुलाजमा थी। उन्होंने ही हारून की परवरिश की थी। सच तो ये था कि वो रुकैया बी को माँ जैसा एहतराम देता था। यही वजह थी कि वो उसके इतने ज़ाती मामले के बारे में भी अपनी राय देती थी। ना सिर्फ राय देती थी बल्कि बाज़ औक़ात इसरार करके अपनी बात भी मनवा लिया करती थी। मगर एक शादी का मामला था जिसमें वो उनकी नहीं सुन रहा था, लेकिन मौका पाते ही वो उन्हें समझाना नहीं छोड़ती थी। आज भी उन्होंने अपनी सी कोशिश की थी हारून को शादी के लिए मनाने की, लेकिन वो हमेशा की तरह बात को टालकर निकल गया था। हारून गाड़ी में बैठने के बाद रुकैया बी की बातों को याद करके मुस्कुरा रहा था। उसी वक्त उसके मोबाइल में आती कॉल हारून उसके ख्यालों से बाहर ले आई। मोबाइल स्क्रीन पर नज़र डालते ही उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। आज सुबह सुबह मेरी याद कैसे आ गई, वो मोबाइल कान से लगाते पूछ रहा था। सुबह शाम तुम्हें तो याद कर लेता हूँ, बस तुम्हें तो हमारी याद ही नहीं आती। दूसरी तरफ मुबशर शिकवा करते हुए कह रहा था।
यकीन करो, कल ही सोच रहा था कि तुम्हारी तरफ चक्कर लगाऊं। आज तुम्हारी कॉल आ गई। खा मेरी कसम कि तू आ रहा है मेरे पास। मुबशर की बात पर वो बेसाख्ता हंस पड़ा। हंसो मत, वादा करो, मुबशर ने मजीद कहा। अरे अभी तो मैंने सिर्फ ये कहा है कि मैं तुम्हारे गांव आने का सोच रहा था, अभी कोई प्लान नहीं बनाया, हारून ने जवाब देते हुए अपनी बात की वजाहत की। हाँ हाँ, तुम जैसा बिजनेस टाइकून कहाँ हम जैसे गरीब देहातियों को लिफ्ट करवाने लगा। मुबशर ने खामखा की इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू की। अब ऐसी बात करने का क्या मतलब हुआ? हारून उसकी ब्लैकमेलिंग में आए बिना पूछने लगा। और कैसी बातें करूं यार, कितने सालों से बातें पर टालते आ रहे हो, कब चक्कर लगाओगे? पता है अम्मी और बाबा भी तुम्हारा पूछ रहे थे, मुबशर ने कहा। उन्हें मेरा सलाम कहना और ये भी कहना कि मैं जल्द उनकी खिदमत में हाजिरी दूंगा, हारून ने जवाब दिया। कुछ देर बाद मुबशर से बातें करने के बाद उसने फ़ोन रख दिया। उसी वक्त उसकी गाड़ी ऑफिस की बिल्डिंग के सामने रुकी और ड्राइवर ने उतरकर उसकी तरफ का दरवाज़ा खोल दिया। मुनाहिल को पाकिस्तान आए हुए एक हफ्ता होने को था। वो यहाँ यूँ रच बस गई थी जैसे हमेशा से यहाँ रहती आई हो। और ये सब देख देख खुर्शीद बेगम निहाल हो रही थी और बात बात पर उसके सदके वारी जा रही थी। मलीहा और जमाल रोज़ उन्हें फ़ोन करते थे और उनके मुंह से मुनाहिल की तारीफ सुन सुनकर खुश होते रहते और वो माँ के सामने सुरखरू हो रहे थे और मुनाहिल भी खुश दिखाई देती थी। अब वो सुकून से वतन वापसी की तैयारी कर सकते थे। मानो बेटा उठ जाओ, सुबह की नमाज का वक्त हो गया है। खुर्शीद बेगम बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे जगा रही थी, लेकिन वो इतनी गहरी नींद में थी कि उसे पता भी नहीं चला कि उसे जगाया जा रहा था। खुर्शीद बेगम ने उसके प्यार का नाम मानू रखा था। हर सुबह यही होता था। शुरू के 1-2 दिन तो खुर्शीद बेगम यही सोचती रही कि कहूँ बच्ची इतने लंबे सफ़र से थकी हुई आई है, इसलिए सुबह की नमाज के लिए नहीं जाग पाती। लेकिन उन्होंने ध्यान दिया तो पता चला कि सुबह की नहीं बल्कि वो किसी भी वक्त की नमाज बाकायदगी से नहीं पढ़ती थी। खुर्शीद बेगम की ये बात जानकर झटका तो लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने मुनाहिल से बास पुरस नहीं की थी। अलबत्ता ये ज़रूर था कि वो हर नमाज के वक्त मुनाहिल को कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर कह देती थी जिससे उसे पता चल जाए कि अब कौन सी नमाज का वक्त हो गया है। वो खामोशी से जायज़ा लेती रहीं, लेकिन जब मुनाहिल ने उनके इशारे किनायों की भी नहीं समझा तो आखिर उन्होंने सीधे सीधे समझाने का फैसला कर लिया और मुलाजमा के हाथ मुनाहिल को उसके कमरे से बुलवा भेजा। दादू आपने मुझे बुलाया? वो कमरे के दरवाजे पर खड़ी पूछ रही थी। हाँ बेटा आओ बैठो। खुर्शीदा ने उसकी मदद और अपनायत भरे अंदाज को बहुत गहरी नज़रों से देखा और दिल में खासा इत्मीनान महसूस किया। जी दादू बताएं, क्या कहना था आपने? मुनाहिल दादी के पास बेड पर बैठते हुए कहने लगी। बेटा मेरी एक ख्वाहिश है, अगर तुम पूरी कर सको तो। खुर्शीद बेगम ने इतना कहकर खामोश हो गईं और मुनाहिल की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगीं। जी दादू आप हुक्म करें, वो ताबेदारी से बोली। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर 5 वक्त की नमाज इकट्ठे अदा किया करें। खुर्शीद बेगम की बात पर मुनाहिल चुप सी हो गई। कैसा मुमकिन है बेटा जी? मुनाहिल को चुप देखकर उन्होंने सवाल दोहराया। जी दादू क्यों नहीं, हम आज से सारी नमाजें इकट्ठे पढ़ा करेंगे। मुनाहिल के जवाब पर उन्हें कदर सुकून मिला और उनके जहन में ये ख्याल भी आने लगा कि शायद उनकी अमेरिकन पोती को नमाज सिरे से पढ़ना ही नहीं आती। ये खदशा दूर हुआ तो वो हल्का फुल्का महसूस करने लगी। चलो फिर वज़ू करके आ जाओ। शाबाश, असर का वक्त निकला जा रहा है, उन्होंने बेड से उठते हुए कहा तो मुनाहिल अस्पात में सर हिलाती बेड से उठ खड़ी हुई। तुम्हें कितना समझाया था कोई ऐसी हरकत ना करना जो तुम्हारी दादों को बुरी लगे, लेकिन तुमने ख्याल नहीं किया ना। मुनाहिल के मोबाइल पर मलिहा की कॉल आई हुई थी और वो उसे डांटते हुए कह रही थी। मैंने क्या किया है मामा? मुनाहिल हैरान लहजे में पूछ रही थी। पता है मुझे कल कितनी शर्मिंदगी हुई जब अम्मा ने ये पूछा कि मुनाहिल को नमाज़ पढ़ने की आदत नहीं डाली तुम लोगों ने। मलिहा ने अपनी नाराज़गी की वजह बयान की। मैं क्या करूँ मामा, मेरी आँख नहीं खुलती सुबह सुबह और दूसरी तो बहुत होती है, वरना बाकी 4 नमाजें तो मैं पढ़ती ही हूँ। वो बेचारगी से कह रही थी। तुम्हारे यहाँ होते भी मैंने कितनी कोशिश की थी कि तुम नमाज की पाबंद रहो, लेकिन तुम हमेशा कमी कुतराया करती थी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कल सुबह तुम्हें अपनी दादों से पहले जागना है। वो उसकी क्लास लेते हुए आखिरी हुक्म दे रही थी। लेकिन मामा मैं, मुनाहिल ने सदाए एहतजाज बुलंद करने की कोशिश की, लेकिन मलिहा ने उसकी बात दरमियान में ही काट दी। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, जो कहा है वो करो, और ख़बरदार जो दोबारा मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ सुनने को मिला तो। वो सख्त लहजे में तंबीह कर रही थी। जैसे कैसे वक्त निकालकर आखिर हारून मुबशर के गांव पहुंच ही गया था। मुबशर के घर में वैसे तो सब लोग पर्दा करते थे, लेकिन हारून की हैसियत घर के फर्ज जैसी थी। यही वजह थी कि कोई भी उससे पर्दा नहीं करता था और घर की खवातीन भी उससे बातचीत कर लिया करती थीं। ये और बार के उनके माहौल को मद्देनजर रखते हुए हारून खुद एक फासले पर रहते हुए अदब एहतराम से बात किया करता था और उसकी नज़रें हमेशा झुकी होती। उसका ये अंदाज दूसरों के दिलों में घर करने को काफ़ी था। हारून की आमद पर सभी बहुत खुश थे। मुबशर ने डेरे पर खुसूसी एहतमाम किया था
और इलाके के सभी गुलकारों को बुलवाकर महफिल मौसीकी का एहतमाम किया था। हारून माहौल की इस तब्दीली को बहुत अच्छी तरह एंजॉय कर रहा था। शहर की मसरूफियत मशीनी ज़िंदगी से एकदम फरागत पाकर वो काफ़ी फ्रेश फील कर रहा था। मनाहिल जैसे किसी नमाज के लिए उठ तो जाती थी, लेकिन उसके बाद दोबारा सो जाया करती थी। आज भी जब वो नींद से जाकर कमरे से बाहर आई तो उस हवेली में कुछ हलचल सी महसूस हुई। खुर्शीदा बेगम अपने तख्त पर बैठी बारी बारी सब मुलाजिमों को हदायत दे रही थीं। अस्सलाम वालेकुम दादो, वो सलाम करती उनके करीब ही तख्त पर बैठ गई। खुर्शीद बेगम ने उसके सलाम का जवाब दिया और फिर से मुलाजिमों के साथ मसरूफ़ हो गई। क्या बात है दादो, आज कोई ख़ास दिन है क्या? जैसे ही खुर्शीद बेगम मुलाजिमों को हदायत देते फारग हुई, मनाहिल पूछने लगी, आज नहीं कल बहुत ख़ास दिन है। कल सारे गांव की दावत है हवेली में और साथ वाले गांव से भी कुछ मेहमान आएंगे। तुम्हारे लिए सूट तैयार करवाया है। काकी से कहना तुम्हें तुम्हारा सूट और जेवर दे देंगी जो तुमने कल पहना है। खुर्शीद बेगम ने तफसील से उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, लेकिन ये सब है किस लिए? मनाहिल को अभी तक उसके सवाल का जवाब नहीं मिला था, इसलिए उसने अपना सवाल दोहराया। कल मेरी प्यारी पोती यानी तुम्हारी सालगिरह है। खुर्शीद बेगम ने प्यार भरी नज़रों से मनाहिल को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, अरे मुझे तो याद ही नहीं रहा। तो क्या ये इतनी बड़ी दावत मेरी सालगिरह की खुशी में दी जा रही है? वो खुशगवार हैरत का शिकार होते पूछ रही थी। हाँ तो और क्या? खुर्शीद बेगम मनाहिल की खुशी को महसूस करते हुए खुद भी खुश होते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि गांव में भी सालगिरह वगैरह मनाते हैं। मनाहिल के दिल की बात ज़बान पर आ गई। क्यों भाई, गांव में क्या खुशियां मनाने का रवाज नहीं होता? खुर्शीदा बेगम उसकी हैरत से लुत्फ उठाती पूछने लगी, तो जवाब में मनाहिल बस मुस्कुराकर रह गई। ओह मामा क्या बताऊं, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कहीं की प्रिंसेस हूँ। दादू ने इतने सारे लोगों को बुलाया है, इतनी बड़ी दावत रखी है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब मेरी सालगिरह के लिए किया जा रहा है। ऐसी सालगिरह तो हमने अमेरिका में भी नहीं मनाई कभी। वो फ़ोन पर मलिहा से बात करते हुए जोशो खरोश से सब बता रही थी और उसकी खुशी को महसूस करते हुए मलिहा भी मुस्कुराई जा रही थी। अच्छा मामा, अब मैं सो जाती हूँ वरना सुबह सुबह आँख नहीं खुलेगी। कुछ देर माँ बाप से बात करने के बाद उसने सोने का कहते हुए फ़ोन रख दिया। हारून को ज़्यादा वक्त डेरे पर गुजरता था। गांव के लोग कहीं न कहीं डेरे पर आया ही रहता था। अभी भी कुछ देर पहले मुबशर के कज़न्स और गांव के कुछ और लोग किसी मसले के हल के लिए वहां आए हुए थे। मुबशर के बाबा चौधरी याकूब इस गांव के सबसे बड़े ज़िम्मेदार थे। इलाके की सियासत में भी उनका नाम सहरे फहरिस्त हुआ करता था। गाँव के लोग अपने मसले मसाइल के हल के लिए उनके पास ही हाजिरी दिया करते थे। यार मोहम्मद, आए हुए 3 दिन हो गए हैं और तुमने अभी तक शिकार पर जाने का प्रोग्राम नहीं बनाया। इस बार शिकार का इरादा नहीं है क्या? तन्हाई मिलते ही हारून ने शिकवानुमा सवाल किया तो मुबशर मुस्कुरा दिया। यार मैं खुद भी यही सोच रहा था, मुबशर ने जवाब दिया। तो फिर कल का प्रोग्राम बना लो, फिर मुझे वापस भी जाना है। हारून ने कहा, इतनी जल्दी मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा, ये ख्याल भी जहन में मत लाना। तुम और जहाँ तक शिकार पर जाने की बात है तो कल किसी भी तरह मुमकिन नहीं, मुबशर ने जवाब दिया। क्यों, कल तुम कहाँ मसरूफ़ हो? हारून ने मायूसी से सवाल किया। कल साथ वाले गांव जाना है, दावत है हम सबकी और जाना ज़रूरी है, मुबशर ने जवाब दिया। ओह, मतलब कल का पूरा दिन बोरियत में गुजरेगा? हारून ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। बोरियत कैसी, तुम भी हमारे साथ चलोगे? मुबशर ने कहा। जी नहीं, मुझे बिन बुलाया मेहमान बनने का कोई शौक़ नहीं है, हारून ने जवाब दिया। तुम बिन बुलाए नहीं होगे, उन्होंने सबको बुलाया है और हमारे घर वालों में तुम भी शामिल हो, मुबशर ने इतने मान से कहा कि हारून मजीद कुछ ना कह सका। और हाँ, 1-2 दिन में शिकार का प्रोग्राम भी बना लेंगे, मुबशर ने जैसे से तसल्ली दी। जैसी तुम्हारी मर्जी, हारून ने मुस्कुराते हुए उसकी हाँ में हाँ मिलाई। वैसे ये दावत किस सिलसिले में है? हारून ने यूं ही सरसरी से सवाल किया था, लेकिन जवाब में मुबशर ने उसे खुर्शीद बेगम की पूरे ख़ानदान का तारुफ करवाने के साथ साथ अगले दिन की दावत की वजह भी बताई तो वो सर हिलाकर रह गया। उसे इस दावत में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, वो सिर्फ मुबशर के इसरार की वजह से वहाँ जा रहा था। उस रोज़ गांव में मेले का समा था। सारे बच्चे रंगीन कपड़े पहने खूब बने ठने इधर उधर भागते फिर रहे थे। हवेली की चहल पहल भी देखने के लायक थी। अगरचे खाने का इंतज़ाम मर्दाने में सहन के एक कोने में देगों की सूरत में हो रहा था, जिनके लिए ख़ास तौर पर गांव के बेहतरीन खाना पकाने वाले नाइयों को बुलाया गया था। लेकिन इसके बावजूद हवेली के सारे मुलाजमीन बेहद मसरूफ़ और मसरूर से अंदर बाहर जाते दिखाई दे रहे थे। गांव के ख़ास घरों से औरतें सज बनकर हवेली में पहुंच चुकी थीं और अब खुर्शीदा बेगम के साथ बैठी चाय से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए गपशप करने में मसरूफ़ थीं। दावत चूँकि दोपहर की थी, इसलिए मुबशर वगैरह भी 10 बजे के करीब घर से निकले थे। गांव पहुंचने पर उनका इस्तकबाल खुर्शीदा बेगम के भांजों और भतीजों ने किया था। सबसे मिलने के दौरान ही हारून के फ़ोन पर ऑफिस से कॉल आने लगी। कॉल बहुत ज़रूरी थी, इसलिए सबसे माजरत करते हुए वो थोड़ा साइड पर होकर फ़ोन सुनने लगा।
फ़ोन पर उसे तकरीबन 5 मिनट लग गए थे जब वो फ़ोन बंद करके मुड़ा और मुबशर और उसकी फैमिली मेज़बानों के साथ अंदर जा चुकी थी। और एक जैसे बड़े गेट देखकर हारून उलझन में पड़ गया। ना जाने कौन सा गेट मर्दाने का था और कौन सा जनाने हिस्से में जाने का रास्ता था। इस मसले का हल सोचते हुए हारून की नज़र 2 लड़कों पर पड़ी तो वो कुछ सोचता हुआ उनकी तरफ बढ़ा। बेटा, ये बताओ मर्दाने में जाने वाला गेट कौन सा है? हारून ने उनमें से एक लड़के को मुखातिब करते हुए पूछा। दोनों लड़कों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में कुछ बात करके एक गेट की तरफ इशारा कर दिया। जैसे हारून गेट की तरफ जाने के लिए मुड़ा, दोनों लड़कों की आंखों में नाचती शरारत होठों को हंसी में बदल गई। मुंह पर हाथ रखकर हंसी रोकने की कोशिश करते दोनों बच्चे वहां से फरार हो गए। उस रोज़ खुर्शीद बेगम की हदायत की वजह से मनाहिल बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। खुर्शीदा बेगम ने उसके लिए सफ़ेद चूड़ीदार पाजामे के साथ कलियों वाली फ्रॉक बनवाई थी। जिस पर सिल्वर कलर का गोटे का बहुत नफीस और खूबसूरत काम किया हुआ था। साथ में जाली वाला दुपट्टा था जो इस अंदाज से ओढ़ा गया था कि उसका एक हिस्सा मनाहिल के सर को भी ढांपे हुए था और उस पर भी जगह जगह गोटी का नाजुक सा काम किया हुआ था। साथ में सिल्वर खुसे थे। जेवर में उसके हाथ और कानों में ताज़ा फूलों से बने जेवर थे जो खास इस तकरीब के लिए बनाए गए थे। गले में कीमती मोतियों की माला थी जो खुर्शीद बेगम की तरफ सालगिरह का तोहफा थी। इस सारे सिंगार ने मनाहिल के रंग रूप को और भी निखार दिया था और वो सबकी नज़रों का मरकज़ बनी हुई थी। उसके मोबाइल पर मलिहा की कॉल आ रही थी, लेकिन वहाँ हर तरफ बच्चे और ख़वातीन थी। टच की वजह से और कुछ कमज़ोर सिग्नल की वजह से बात नहीं हो पा रही थी, इसलिए मनाहिल फ़ोन सुनने के लिए हवेली के बाहरी हिस्से की तरफ आ गई थी। वो माँ का नंबर डायल करती मुकम्मल तौर पर मोबाइल की तरफ मुतवज्जो थी, जहाँ सिग्नल उसके साथ आंख मचोली खेल रहे थे कि अचानक किसी के साथ ज़ोर से टकरा गई। माफ़ी चाहती हूँ, टकराते ही मनाहिल बेसाख्ता कहा और फिर जैसे ही उसकी नज़र हारून पर पड़ी, उसके चेहरे पर हैरत के तासरात नज़र आने लगे। अंदर से कुछ और ख़वातीन को बाहर आते देख हारून को बच्चों की शरारत समझ में देर नहीं लगी और वो तेज़ी से मुड़ा और गेट से बाहर निकल गया। बच्चों ने शरारत करके उसे अच्छा खासा शर्मिंदा कर डाला था। तुम कहाँ रह गए थे? मैं अभी तुम्हें लेने बाहर आने वाला था। मुबश्शिर ने हारून के करीब आते ही सरगोशी की, लेकिन हारून ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सामने जो कुर्सी खाली नजर आई चुपचाप उस पर विराजमान हो गया। लड़की थी कि परी या फिर जन्नत से आई कोई हूर। आज तक कोई लड़की जिसकी नज़र नहीं समाई थी, आज एक अनजानी लड़की को एक नज़र देखने के बाद ही उसके बारे में सोचता हुआ महफिल में भी तन्हाई का मज़ा लूट रहा था। और आवाज़ कैसी मीठी थी, अब वो उसके अल्फाज याद करता। दिल ही दिल में उसकी आवाज़ की खूबसूरती का कायल हो रहा था। और अल्फाज, वह क्या उर्दू बोलती है, वो मुसलसल उसी के बारे में सोचे जा रहा था और अपने इर्द गिर्द से बिल्कुल बेखबर था। कई बार जब उसे किसी से मुखातिब नहीं होता, साथ बैठे मुबश्शिर ने टोके से उसे सोच से नगर से लौटाया। तुम्हें क्या हुआ है? सुबह तक तो अच्छे भले थे। घर वापस पहुंचने के बाद भी हारून गुमसुम सा नजर आ रहा था। आखिर मुबश्शिर पूछे बिना न रह सका। कुछ भी नहीं, हारून ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उसकी मुस्कुराहट मुबश्शिर के इस ख्याल को यकीन में बदलने के लिए काफ़ी थी कि कुछ ना कुछ हुआ है जो बहुत ख़ास है। हारून तो खुद इस बात करने को बेचैन था, इसलिए फ़ौरन ही सारी बात बताने के लिए तैयार हो गया था। यार, मैंने सोच लिया मुझे उसी लड़की से शादी करनी है। तुम चचा चची से बात करो कि मेरा रिश्ता उनके घर लेकर जाएं। हारून हथेली पर सरसों जमाने का इरादा किए बैठे था। अरे अरे सबर मेरे यार, पहले ये तो बता करने दें कि वो कौन है, किस ख़ानदान से है, फिर रिश्ता भी मांग लेंगे। मुबश्शिर ने जवाब दिया। वो जो भी है, जिस ख़ानदान से है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें कैसे बताऊं, उसे देखकर मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे ख्वाबों में इस लड़की का हकीकत का रूप धार कर मेरे सामने आ खड़ी हुई हो। हारून उसके तसव्वुर में खोया हुआ बोल रहा था, इसलिए लहजा धीमा और आवाज़ हल्की हो गई थी। मुबश्शिर ने मुस्कुराते हुए अपने दोस्त की इस कैफियत को महसूस किया। अच्छा, मुझे उसका हुलिया बता, मैं अम्मी लोगों से बात करता हूँ कि वो कौन है। मुबश्शिर ने मुस्कुराते हुए हारून से तफसील जानना चाही और फिर हारून ने मनाहिल का ऐसा नक्शा खींचा कि मुबश्शिर को लगा मनाहिल उसके सामने आ खड़ी हुई हो। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि तुम्हारी मुलाकात खुर्शीदा बेगम की पोती मनाहिल से हुई है, और तो गांव में ऐसी कोई नहीं। मुबश्शिर ने अंदाज़ा लगाते हुए कहा। अच्छा, अब तो यहाँ बैठा क्या कर रहा है? जाकर चची से पूछ उसके बारे में और मेरी शादी की भी बात कर ले। हारून ने उसे इसी तरह आराम से बैठे देखा तो हाथ पकड़कर उठा दिया और बेताबी से कहने लगा, तौबा है, तुम तो लगता है आज ही दुल्हन लेने पहुँच जाओगे। कहाँ शादी के नाम से भागते थे और अब ऐसी बेसब्री। मुबश्शिर उसे तंग करते हुए बोला। पहले ये मिली नहीं थी कि तो शादी कैसे करता? हारून रिटाई से मुस्कुराते हुए कह रहा था।
ہارون کے ہر انداز سے لگ رہا تھا کہ اب وہ اسے سکون سے بیٹھنے نہیں دے گا، اس لیے مبشر نے عافیت اسی میں جانی کہ جا کر اس لڑکی کے بارے میں معلومات لے آئے۔ مبشر نے گھر کی خواتین سے بات کی تو اس کے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ اس نے بنا دیر کیے ماں کو ہارون کا پیغام پہنچا دیا۔ ہارون نے انہیں بڑا بنا کر مان دیا تھا، ویسے بھی وہ کبھی ہارون کو مبشر سے کم نہیں سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے فوراً رشتہ مانگنے کے لیے ہاں کر دی، اور مبشر نے ہارون تک یہ بات پہنچا دی تھی۔ تو پھر کل چلے جائیں چچی لوگ تو ٹھیک رہے گا نا؟ ہارون اپنی بے صبری چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ خدشہ کہ کہیں اسے کوئی اور اپنا نام نہ کروا لے، اس لیے جلد بازی کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مجھے پتا تھا تو یہی کہے گا، اس لیے میں نے پہلے ہی امی سے کل ان کے گھر جانے کی بات کر لی ہے، مبشر نے مسکراتے ہوئے اطلاع دی۔ تو ہارون مارے جذبات کے اسے گلے لگا لیا۔ پھلوں اور مٹھائیوں کے ڈھیر سارے ٹوکروں کے علاوہ کپڑے زیور لے کر وہ لوگ بہت اہتمام سے رشتہ مانگنے پہنچے تھے۔ خورشیدہ بیگم سے ان کے بہت پرانے مراسم تھے، اس لیے انہیں امید تھی کہ انہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گی۔ دیکھو فردوس، مجھے بے حد خوشی ہے کہ تم نے مجھے یہ عزت بخشی، باقی جہاں تک اس بچے کا سوال ہے اس کے بارے میں تم نے یہ سب کچھ بتا ہی دیا ہے۔ تم اور چودھری یعقوب یہ رشتہ لے کر آئے ہو، اس لیے اس رشتے کی اچھائی میں مجھے ذرا بھی شک نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی مجھے کچھ طے کرنے سے پہلے جمال اور اس کی بیوی سے پوچھنا ہوگا۔ آخرکار مناہل کے ماں باپ تو وہی ہیں نا؟ فردوس اور یعقوب کی ساری باتیں سننے کے بعد خورشیدہ بیگم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تو ان کی بات ایسی بے جا بھی نہیں تھی، اس لیے انہیں ماننی ہی پڑی۔ مہمانوں سے سلام دعا کے بعد دادی کے اشارے پر مناہل ڈرائنگ روم سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی، ساتھ ہی مبشر کی بہن نازیہ جو ماں باپ کے ساتھ آئی تھی وہ بھی اٹھ کر مناہل کے پیچھے پیچھے چلی آئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ہم یہاں کس لیے آئے ہیں؟ مناہل کے کمرے میں پہنچتے ہی نازیہ نے شوخی سے سوال کیا۔ ملنے آئے ہیں، اور کس لیے آئے ہیں؟ نازیہ کے شوخ لہجے نے مناہل کو چونکایا ضرور تھا، لیکن وہ بات کی تہہ تک کیسے پہنچ سکتی تھی؟ یہ بات تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ تبھی معصومیت سے سوال کے جواب میں سوال کر رہی تھی، اس کی بات پر نازش کھلکھلا کر ہنس دی۔ ہم یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ کو ہارون بھائی کی دلہن بنا کر یہاں سے لے جائیں، نازیہ اب بھی مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہارون بھائی؟ مناہل کو بالکل سمجھ نہیں آئی کہ وہ کسی بات کر رہی تھی، اس لیے بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ ہارون بھائی جو کل غلطی سے زنان خانے میں چلے آئے تھے۔ نازش نے اسے دعوت والے دن کا حوالہ دینا تو مناہل کے ذہن میں چھپاکا سا ہوا، اور وہ منظر اور ہارون کی صورت یاد آتے ہی مناہل کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ خورشیدہ بیگم کی ہدایت پر ملازمہ ان دونوں کے لیے کھانے پینے کے لوازمات وہیں مناہل کے کمرے میں لے آئی تھیں۔ باتوں باتوں میں نازیہ نے ہارون کے سے بچپن کے لے کر اب تک کے ساری کہانی سنا ڈالی تھی۔ اب ہارون مناہل کے لیے کوئی انجان نہیں رہا تھا، بلکہ ایک جانا پہچانا شخص تھا۔ اس کے ماں باپ نے واپسی کا ارادہ کیا تو نازیہ کو مناہل کے کمرے سے بلوا لیا تھا۔ تب تک ان دونوں میں خوب اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ چلے پھر آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ آج ہی ان سے بات کر کے مجھے جواب دیں گی، فردوس نے جاتے جاتے یہ یاد دہانی کروائی تھی، اور خورشیدہ بیگم نے مسکراتے ہوئے جلد جواب دینے کا یقین کروایا تھا۔ نازیہ کے جانے کے بعد مناہل بہت دیر تک ہارون کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ یہ خیال بھی بہت خوش کن تھا کہ ایک شہزادوں جیسی آن بان رکھنے والے شخص نے اسے زندگی کا ساتھی بنانے کی خواہش کی تھی۔ ہارون کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اتنی آسانی سے اس رشتے کے لیے نہ مانتی، لیکن وہ چند لمحوں کی عجیب سی ملاقات مناہل کے دل میں ہارون کے لیے جگہ بنا گئی تھی۔ ابھی تک خورشیدہ بیگم نے اس معاملے میں اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن اگر اس سے پوچھا جاتا تو اس کا جواب ہاں ہونا تھا۔ یہ احساس ہوتے ہی ایک شرمیلی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ڈیرا ڈال کر بیٹھی تھی۔ دیکھو بہو، میں نے تمہیں لڑکے کے بارے میں سب بتا دیا ہے۔ یہ رشتہ چودھری یعقوب کے طرف سے آیا ہے، جن پر مجھے پورا اعتماد ہے۔ لڑکے میں بھی بظاہر کوئی کمی دکھائی نہیں دے رہی، اچھے خاندان سے ہے، ہاں مگر یہ ہے کہ خاندان میں کوئی بڑا نہیں ہے، اس لیے چودھری یعقوب کے خاندان نے اس کے لیے رشتہ مانگا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کی وجہ سے رشتے سے انکار کیا جائے۔ خورشیدہ بیگم نے حسب وعدہ اسی رات بیٹے بہو سے اس رشتے کے بارے میں بات کر لی تھی۔ ہارون کے بارے میں بتائی گئی ایک ایک بات اپنی رائے سمیت انہوں نے بہو اور بیٹے کے سامنے رکھ کر فیصلے کا اختیار انہیں سونپ دیا تھا۔ اماں جی، اگر آپ مطمئن ہیں تو پھر ہمیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ جو بہتر سمجھیں وہ فیصلہ کریں، بس اتنی گزارش ضرور کروں گا کہ فیصلہ کرنے سے پہلے مناہل سے ایک بار ضرور پوچھ لیجیے گا۔ جمال نے ماں کو مان دیتے ہوئے فیصلے کا اختیار دیا تو ان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم فکر نہ کرو بیٹا، میں مناہل سے بات کر کے ہی فیصلہ کروں گی، انہوں نے اپنے بیٹے کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اور کچھ دیر اسی موضوع پر بات چیت کے بعد انہوں نے فون رکھ دیا تھا۔ مناہل کی شادی کے خیال نے انہیں بھی بہت پرجوش اور چاقو چوبند کر دیا تھا، اور ہمیشہ کی طرح جب اس رات عشاء کی نماز کے بعد مناہل انہیں کتاب پڑھ کر سنانے لگی تو انہوں نے اسے روک دیا۔ مجھے آج تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔
खुर्शीद की बात पर मनाहिल की झुकी नज़रें उन्हें ये बताने के लिए काफ़ी थीं कि मनाहिल इस रिश्ते के बारे में जानती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी तफसील से उसे हारून के और चौधरी याकूब की फैमिली के बारे में बताया था। तुम्हारे माँ बाप को इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा फैसला सुनना चाहती हूँ। खुर्शीद बेगम ने नरम लहजे में सवाल किया। जैसे आप और मामा पापा बेहतर समझे, मुझे आप लोगों का हर फैसला मंजूर होगा, मनाहिल ने नज़रें झुकाए हुए जवाब दिया। तो खुर्शीदा बेगम को अपनी पोती पर टूट कर प्यार आया था। जीती रहो, वो उसके सर पर हाथ फेरती दुआएं देने लगी और उस रात उन्होंने किसी किताब पर बहस करने के बजाय ज़िंदगी पर गुफ्तगू की थी। ज़िंदगी जो सबसे मुश्किल किताब है, जिसका हर सफ़ा एक अनोखी दास्तान रकम करता है, जिसके बारे में जितना भी सोचा जाए कम है, जिसको जितना भी समझा जाए कम है। खुर्शीदा बेगम ने अगले ही दिन फ़ोन करके अपनी रजामंदी दे दी थी। जवाब में फिरदौस बेगम ने रस्म करने के लिए कहा तो खुर्शीद बेगम ने मना कर दिया। मानो कि माँ बाप आ जाए फिर रस्म भी कर लेंगे, आखिर उनका भी तो हक है कि अपनी इकलौती औलाद की खुशियों में शामिल हो सकें। खुर्शीद बेगम ने जवाब दिया, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है अम्मा जी, लेकिन हमारा बस कोई खुशी करने को दिल चाह रहा है। आप सिर्फ इतनी इजाज़त दें कि हम आकर मनाहिल को अंगूठी पहना दें, बाकी जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा। आखिर फिरदौस के बहुत इसरार पर खुर्शीदा बेगम ने हाँ कर दी थी और फिरदौस ने हारून की माँ का किरदार बखूबी निभाते हुए बड़े शानदार अंदाज में मंगनी की एक छोटी सी रस्म की थी। मनाहिल के लिए उनकी मोहब्बतों को देखकर खुर्शीदा बेगम को अपनी पोती की खुशकिस्मती पर रश्क आ रहा था। उन्हें यकीन था कि उनकी मानो की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरने वाली थी। नाजिया ने हारून को मनाहिल का मोबाइल नंबर दे दिया था और उसने भी कॉल करने में ज़रा भी देर नहीं लगाई थी कि वो मधुर आवाज़ सुनने की उसकी समातें तरस रही थीं। लेकिन दूसरी तरफ देर तक बैठ जाने के बावजूद किसी ने कॉल रिसीव नहीं की थी। हारून को मायूसी हुई, लेकिन वो थोड़े वक्फे से मनाहिल के नंबर पर कॉल करता रहा, लेकिन उसके मन की मुराद पूरी नहीं हो सकी थी, क्योंकि मनाहिल दादी के कमरे में थी और उसका मोबाइल उसके अपने कमरे में पड़ा था। मनाहिल हस्बे मामूल ईशा की नमाज़ पढ़कर और फिर किताब सुनाकर अपने कमरे में आई तो मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से आती हुई ढेर सारी कॉल देखकर सोच में पड़ गई। शायद नाजिया की कॉल हो। उसे अचानक याद आया कि आज मंगनी के बाद शाजिया ने उससे उसका नंबर लिया था। यही सोचकर मनाहिल ने वही नंबर मिला दिया। जहे नसीब, आपको हमारा ख्याल तो आया, गहरे और खूबसूरत लबो लहजे में किया गया शिकवा मनाहिल की समात से टकराया तो वो एक लम्हे को चुप सी रह गई। हेलो मनाहिल, उसे खामोश पाकर हारून ने नरम लहजे में पुकारा। आप कौन? वो बेसाख्ता सवाल कर गई। मैं वही जिसके लिए आप सब कुछ हैं, हारून ने शौक लहजे में जवाब दिया तो मनाहिल एक लम्हे में उसे पहचान गई। अस्सलाम वालेकुम, और कुछ समझ न आया तो उसने सलाम ठोक दिया। वालेकुम सलाम, जीती रहिए, खुश रहिए। हारून ने शरारत के मूड में था और उसे घबराहट ने घेरा हुआ था। आपने मुझे क्यों फ़ोन किया? ये सवाल भी बेसाख्तगी में किया गया था, एकदम फजूल सवाल करते ही दूसरी तरफ हारून का कहका सुनकर मनाहिल ने दिल ही दिल में अपने आप को कोसा और खुदा हाफिज़ बोलकर जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। अभी फ़ोन बंद किए चंद ही मिनट गुजरे थे कि उसे मैसेज टोन सुनाई दी। उसने जल्दी से मोबाइल उठाकर चेक किया। मैसेज भेजने वाला हारून था, जिसने बड़े खूबसूरत लफ्ज़ों में हाले दिल लिख भेजा था। मनाहिल नित नए ख्वाबों में खोई बुलंद आवाज़ में मैसेज पढ़ने लगी। जाने जा ये जहाँ, ये ज़मीं आसमां, ये मेरे रात दिन, खाक हैं तेरे बिन, ये मेरी ज़िंदगी, दोस्ती दुश्मनी, रास्ते वास्ते सब तुम्हारे लिए। तुम जो देखो तो मेरे शबो रोज़ को कोई मतलब मिले, तुम जो पूछो तो मेरे हर एक हर्फ को कोई रुतबा मिले, कोई मनसब मिले। तुम जो सोचो मेरे वास्ते कुछ भी, मैं सितारों को मुट्ठी में भर लाऊंगा। तुम अगर एक दिन मुझको आवाज़ दो, मैं जहाँ भी हूँ लौट कर आऊँगा। ये मेरे जिस्मो जाँ, मेरे शेरो सफ़न, मेरी तन्हाइयाँ बज़्मे आराइयाँ, अब तुम्हारे लिए, सब तुम्हारे लिए, सब तुम्हारे लिए। वो मोबाइल की धक धक करते दिल से लगाए आंखें बंद किए आखिरी मिसरा बार बार दोहराई जा रही थी। इस वक्त उसे देखने वाला लम्हा भर झिझके बिना कहे जा सकता था कि वो इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत इंसान है, और सबसे खुशकिस्मत भी क्योंकि इतनी खुशी के लम्हात तो किस्मत वालों के ही मिला करते हैं ना। हारून अपने ऑफिस में दाखिल हुआ तो दरवाजे पर ठटक कर रह गया। उसके ऑफिस में इतने ज़्यादा फूलों के गुलदस्ते रखे हुए थे कि वो ऑफिस के बजाय फूलों की दुकान लग रहा था। सर, ये आपकी मंगनी की खुशी में हम सबकी तरफ से। हुमा जो उसके साथ ही थी उसकी सवालिया नज़रों के जवाब में कहने लगी तो हारून के लबों पर मुस्कुराहट आ गई और वापस मुड़ा और उसने बुलंद आवाज़ से सबको मुखातिब किया। हेलो एवरीवन। उसकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि सब उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। सब बारी बारी उसे मंगनी की मुबारकबाद देने लगे।
वो एक बार फिर सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपने ऑफिस में लौट आया, लेकिन आने से पहले वो अपनी सेक्रेटरी मिस हुमा को सबके लिए मिठाई मंगवाने का कहना नहीं भूला था। वो हमेशा अपने वर्कर्स के साथ बहुत अच्छे से पेश आता था। उसने अपने बाप से यही सबक सीखा था कि वर्कर्स की परेशानी को अपनी परेशानी समझो, वो तुम्हारे लिए दिन रात एक कर देंगे। और हारून हर अच्छे बुरे वक्त में अपने वर्कर्स के साथ खड़ा था। तभी आज वो उसकी खुशी को अपनी खुशी समझते हुए सेलिब्रेट कर रहे थे और वो अपनी कुर्सी पर बैठा यही सब सोचे जा रहा था। अचानक उसका शिद्दत से दिल चाहा कि वो मनाहिल से बात करे। दिल की ख्वाहिश पर लब्बैक कहते हुए उसने फ़ौरन फ़ोन उठाकर मनाहिल का नंबर मिला दिया था। दूसरी तरफ उसने फ़ौरन कॉल रिसीव की थी। प्लीज़ अपनी एक सेल्फी लेकर मुझे भेजो। सलाम दुआ के बाद वो लहजे में ढेरों प्यार समेटे फरमाइश कर रहा था। ओके भेजती हूँ। मनाहिल ने उसके अंदाज पर मुस्कुराते हुए हामी भर ली थी। थैंक यू, मैं वेट कर रहा हूँ, फ़ौरन भेजो। वो फ़ोन बंद करने से पहले ताकीद करते नहीं भूला था। 2-3 मिनट बाद उसके व्हाट्सएप पर मनाहिल की ताज़ा तरीन सेल्फी आ गई थी। ब्लू कलर के कुर्ते के साथ वाइट शलवार और दुपट्टे में बिना किसी मेकअप के बेहद खूबसूरत लग रही थी। सबसे ज़्यादा खूबसूरत और उसकी आंखें लग रही थीं, जिनकी चमक को देखकर लगता था जैसे आसमां के सारे सितारे कूटकर इन आंखों में भर दिए गए हों। वो जाने कितनी देर इस तस्वीर को देखता रहा था, बिना चाहते हुए भी काम की तरफ मुतवज्जो हो गया। वो मलिहा से बात कर रही थी। पहले उसकी शादी के बारे में होती रही थी बातें। तुम्हारा दिल तो लगा हुआ है ना वहाँ? मलिहा ने अचानक ही पूछ लिया। जी मामा, दिल लगा हुआ है, बस कभी कभी दादी की भारी भरकम किताबों से बोर हो जाती हूँ, बाकी सब ठीक है, उसने सच बोलते हुए कहा। तो जवाब में मलिहा हंस दी। कोई बात नहीं, बस थोड़े दिनों की बात है, फिर तो तुम रुखसत होकर अपने घर चली जाओगी, फिर वहाँ जैसे चाहे रहना। मलिहा ने प्यार से समझाया तो हमेशा की तरह उसने उनकी बात मान ली और फिर इधर उधर की बातों में लगकर वो अपनी बोरियत को भूल भाल गई। आप लोग पाकिस्तान कब आ रहे हैं? मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ मामा, मनाहिल ने कहा। हम भी तुम्हें बहुत मिस करते हैं मेरी जान, बस थोड़े दिन और, उम्मीद है कि तुम्हारे पापा जल्द ही अपना बिजनेस समेट लेंगे। मलिहा ने जवाब दिया तो उदास होने के बावजूद उसने उन पर जाहिर नहीं किया और बातें करती रही। मनाहिल की ये रूटीन बन गई थी कि सुबह की नमाज वो दादू के साथ पढ़ती थी और फिर वो उन्हें कुरान का तर्जुमा पढ़कर सुनाती और साथ साथ खुर्शीदा बेगम उसे कुरान की आयत तफसील से समझाती जाती। उसके बाद वो दोनों साथ साथ नाश्ता करते और खुर्शीदा बेगम गांव की औरतों के मामलात में मसरूफ़ हो जाती और इस वक्त आमतौर पर मनाहिल अपनी नींद पूरी किया करती या फिर अपने माँ बाप या दोस्तों से बातचीत करके दिल बहलाया करती थी। इसी दौरान अक्सर हारून से भी बातचीत हो जाया करती थी। सारे दिन की नमाजें वो दोनों दादी पोती साथ अदा करते थे और ईशा की नमाज के बाद वो दादी को उनकी पसंद की कोई किताब पढ़कर सुनाया करती, जो आमतौर पर फलसफे या लिटरेचर की किताब हुआ करती थी। दिलचस्पी न होने के बावजूद मनाहिल पूरे दिल से दादी का साथ देने की कोशिश किया करती थी और इन सब बातों के अलावा हर रोज़ हारून को अपनी सेल्फी बनाकर भेजना भी उसके मामूलात में शामिल हो गया था। उस रात वो सोने के लिए अपने कमरे में आई तो मोबाइल पर हारून का मैसेज आया हुआ था, अगर फ्री हो तो मुझसे बात करना। उसने मुस्कुराते हुए हारून का नंबर मिला दिया। उसकी कॉल को पहली बेल पर ही रिसीव कर लिया गया। वही यकीनन उसका मुंतज़िर था। मैंने समझा तुम सो गई होगी, तभी इतनी देर से रिप्लाई नहीं किया। हारून के लहजे में हल्का सा शिकवा महसूस करके वो बेख्तियार मुस्कुरा दी। पहले उसने सोचा हारून को तंग करे, लेकिन फिर अपना इरादा मुलतवी करते हुए जवाब देने लगी। दरअसल मैं ईशा की नमाज के बाद कोई किताब पढ़ती हूँ, मनाहिल ने उसे बताया। ओह अच्छा, तभी मैं कहूँ कि मैडम साहिबा कहाँ बिजी रहती हैं, कौन सी किताबें पढ़ी हैं? वो बेतकल्लुफ़ी से पूछ रहा था। जवाब में मनाहिल को जिन जिन किताबों के नाम याद थे उसने दोहरा दिए और इन किताबों के नाम सुन सुनकर हारून मुतासिर होता चला गया। फिर उसके पूछने पर मनाहिल ने उसे अपनी सुबह से रात तक की सारी रूटीन बता दी, जिससे वो मनाहिल से और भी ज़्यादा मुतासिर हो गया और दिल ही दिल में अपने खुदा का शुक्र बजा लाया जिसने उसे अपनी पसंद की लड़की इतनी आसानी से अता कर दी थी। उस रात उन्होंने रात गए तक ढेर सारी बातें की थी। मलिहा और जमाल के पाकिस्तान पहुंचने के कुछ दिन बाद ही मनाहिल और हारून की शादी की तारीख रख दी गई थी। दोनों तरफ शादी की भरपूर तैयारियां की जा रही थीं, जिनमें मुबशर और उसकी फैमिली हर मामले में पेश थी। याकूब और फिरदौस ने जो हमेशा हारून को अपना बेटा कहा था, अब साबित भी कर दिया था। हारून इन सब का बहुत शुक्रगुजार था। एक एक करके वो सारे दिन गुजरते चले गए और आज हारून अपने सपनों की रानी को दुल्हन बनाकर अपने राजमहल में हमेशा के लिए लेकर आया था। मुबशर का पूरा ख़ानदान दुल्हा की तरफ से शामिल हुआ था। वो हारून के इसरार पर शादी के कई दिन पहले से ही शहर में हारून के घर आ गए थे और उन्होंने सारे रस्म व रिवाज किए थे। अभी भी ढेर सारी रस्मों के बाद नाजिया और उसकी कज़न से उसे हारून के कमरे में बिठाकर गई थी। सबके कमरे से जाते ही मनाहिल ने अपना झुका हुआ सर उठाकर कमरे का जायज़ा लिया तो जैसे बहुत खूबसूरती और नफासत से सजाया गया था।
उसी वक्त उसे दरवाजे पर आहट सुनाई दी तो वो फिर से नज़रें झुकाकर बैठ गई और आने वाले वक्त के ख्याल से उसकी धड़कनें बेतरतीब होने लगीं। अंदर आने वाला हारून ही था, जो ब्लैक कलर की शेरवानी में मलबूस था, जिस पर बहुत खूबसूरत कढ़ाई की गई थी। वो आम से लिबास में भी किसी रियासत का शहजादा लगता था। आज तो उसकी आन बान ही निराली थी। रस्मों के दौरान ही मुनाहिर ने कई बार चोर नज़रों से उसका जायज़ा लिया था और उसे लगा था जैसे वो सचमुच कोई शहजादी थी जिसे लेने उसका राजकुमार आ पहुंचा था। अभी तक सारे लोग उसकी किस्मत पर रश्क कर रहे थे, अब उसे अपनी किस्मत और अपने रब पर प्यार आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वो ख्यालों ही ख्यालों में जाने कहाँ जा पहुंची थी कि हारून की आवाज़ उसे उसके ख्यालों से बाहर खींच लाई। उसने नज़रें झुकाए झुकाए धीरे से सलाम का जवाब दिया। हारून ने सर पर से कुल्ला उतार कर साइड टेबल पर रखा और खुद बेड पर उसके सामने आ बैठा। कितने ही लम्हे गुजर गए, वो एकटक उसे देखे जा रहा था। तुम्हें लगेगा कि मैं शायद पागल हो गया हूँ जो तुम्हें यूँ देखे जा रहा हूँ। हाँ, मगर ये सच है कि आज मैं वाकई खुशी से पागल हो रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें पा लिया है। अगर इजाज़त हो तो तुम्हें छूकर यकीन कर लूँ, वो पूछ रहा था और मुनाहिल शर्म से झुकी जा रही थी। इजाज़त है? उसने ना जाने क्यों दोबारा पूछा था। मैं उसकी दस्तरस में हूँ, मगर वो मुझे मेरी रज़ा से मांगता है। मुनाहिल को जाने कब का पढ़ा शेर याद आने लगा। उसने शर्माते ले जाते अपना दायां हाथ हारून की तरफ बढ़ा दिया, जिसे उसने बहुत मोहब्बत से थाम कर चूम लिया। अब यकीन आ गया है, थैंक यू, वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। सॉरी, मैंने मुंह दिखाई का तोहफा दिया ही नहीं। 1 मिनट में आता हूँ। वो बेड से उठकर एक साइड पर रखे बुक रैक की तरफ गया तो मुनाहिल ने उसे हैरत से देखा। दूसरे ही लम्हे वो बुक रैक से एक बड़ा सा पैकेट उठाए बेड की तरफ वापस आने लगा तो मुनाहिल फिर से सीधा होकर बैठ गई। ये तुम्हारे लिए। हारून ने वो पैकेट बेड पर उसके करीब रखते हुए कहा। तो मुनाहिल ने बेसख्ता सवालिया नज़रों से उसे देखा। खोल कर देखो ना, वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। मुनाहिल ने पैकेट खोलना शुरू कर दिया और जब उसने पैकेट में से निकलने वाली चीज़ों को देखा तो वो हक्का बक्का रह गई। वो फ़लसफ़े की मोटी मोटी लेकिन बेहद कीमती किताबें थीं। पता है, मिल नहीं रही थी, तुम्हारे लिए स्पेशल अरेंज की हैं। लगता है तुम्हें गिफ्ट पसंद नहीं आया, वो जो जोशो खरोश से बोले जा रहा था। मुनाहिल के चेहरे पर नज़र पड़ते ही उसका सारा जोशो खरोश गायब हो गया। शादी की गिफ्ट में किताबें कौन देता है भला? मुनाहिल शदीद मायूसी भरे लहजे में पूछ रही थी। आई एम सॉरी, मुझे लगा कि तुम्हें ये किताबें पसंद हैं और उस वक्त तुम कह रही थी ना कि ये किताबें तुम्हें मिल नहीं रहीं, तो इसलिए मैंने सोचा। खैर डोंट वरी, मैं तुम्हें कल तुम्हारी मर्ज़ी का गिफ्ट दिलवा दूंगा। वो जैसे उसे तसल्ली दे रहा था। वो किताबें मैं इसलिए पढ़ती थी क्योंकि वो दादी को पसंद थी तो उनको पढ़कर सुनाती थी। मुनाहिल ने उसकी गलतफहमी दूर करते हुए कहा। ओह, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी तुम और अपनी राय देती थी। हारून ने शादी से पहले होने वाले वो बहसों का हवाला दिया। वो तो जो दादी मुझे बताती थी मैं आपके सामने वही बोल देती थी। मुनाहिल ने मासूमियत से एक और राज फाश किया। चलो कोई बात नहीं, हम ये किताबें दादी को गिफ्ट कर देंगे। हारून ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब वो और भला क्या कह सकता था, मगर जल्द ही वो मुनाहिल के हुस्न में खोकर कुछ देर में पहुंचने वाले शौक से संभल गया था। देर से सोने के बावजूद सुबह की नमाज के वक्त हारून की आंख खुल गई थी और फिर उसने मुनाहिल को भी जगाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम गई थी। हर बार जगाए जाने पर मुनाहिल करवट बदलकर और गहरी नींद सो जाती। बहुत थकी हुई है शायद। आखिरी नमाज का वक्त निकलता देखकर वो मुनाहिल को सोता छोड़कर बाथरूम में चला गया। शादी के अगले दिन वलीमे के बाद दस्तूर के मुताबिक मुनाहिल अपने घर वालों के साथ गाँव रुखसत हो गई और पीछे हारून उदास सा अकेला रह गया। उन्होंने हारून को भी साथ चलने को कहा था, लेकिन कुछ ज़रूरी मीटिंग्स की वजह से उसने साथ जाने से माजरत कर ली थी। हालांकि दिल तो उसका भी था कि या तो वो मुनाहिल के साथ चला जाए या फिर उसे वहाँ रोक ले, लेकिन मजबूर था इसलिए खामोश रहा। हाँ, गांव जाने के रास्ते में मुनाहिल को सारा रास्ता हारून के मैसेज मिलते रहे थे। आखिर उसे मैसेज टोन बंद करना पड़ी थी, लेकिन हारून की ये दीवानगी उसके दिल के आंगन में मोहब्बत और चाहत के ढेर फूल खिला रही थी। 2 दिन बाद हारून अपनी मीटिंग्स भुगताकर गांव पहुंच गया था और फिर 3 दिन बाद मुनाहिल को साथ लेकर ही लौटा था। बस यार क्या बताऊं, मेरे साथ तो सब कुछ उलट ही हो गया। मैंने सोचा था कि वो बिल्कुल मेरे ख्वाबों जैसी है, लेकिन वो मेरे ख्वाबों और सोचों के बिल्कुल उलट निकली है यार। सोचता था कि सुबह सुबह अपनी मधुर आवाज़ में मुझे नमाज के लिए जगाया करेगी, शाम की चाय पर फलसफे पर गुफ्तगू हुआ करेगी और रात को शेक्सपियर के ड्रामे मिल बैठकर डिस्कस किया करेंगे। लेकिन वो कहती है कि वो तो सिर्फ दादी को खुश करने के लिए बाकायदगी से नमाज कुरान पढ़ती थी और वो सारी किताबें जिन पर हम बातें करते थे वो भी उसे नहीं बल्कि उसकी दादी को पसंद है। और तो और कल शॉपिंग के लिए गए तो एक भी शलवार कमीज़ नहीं खरीदा, सारी जीन्स टी शर्ट्स और अला बला खरीद लिए। मैं तो बस शॉक रह गया और उसे कुछ भी नहीं कह सका।
وہ آج مبشر کے سامنے کھل کر اپنے جلے دل کے پھپھولے پھوڑ رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اس کا ایک ایک لفظ مناہل کے دل پر کیا ستم ڈھا رہا تھا۔ وہ بات کرتے کرتے مڑا اور جیسے وہیں جم کر رہ گیا۔ مناہل کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر اس کے کانوں کو بھگوتے گریبان تک پہنچ رہے تھے، جس کا مطلب تھا کہ وہ کافی دیر سے رو رہی تھی۔ مناہل پلیز، میرا مطلب وہ ہرگز نہیں تھا، میں تو… وہ فون بند کرتا تڑپ کر اس کی طرف بڑھا تھا، لیکن وہ اس کے قریب آنے سے پہلے ہی کمرے سے نکل گئی تھی۔ اور پھر مناہل نے اپنے آپ کو کمرے میں لاک کر لیا، اور ہارون کو بہت کہنے کے بعد، منتیں کرنے کے باوجود بھی اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ پلیز ہارون، مجھے کچھ وقت کے لیے اکیلا رہنے کی ضرورت ہے، میں خود ہی باہر آ جاؤں گی، آپ جائیں پلیز۔ ہارون کی مسلسل پکار کے جواب میں اس نے ملتی جی لہجے میں کہا، اور اس کے لہجے میں جانے کیا تھا کہ ہارون تھکا تھکا سا وہاں سے ہٹ کر اپنے کمرے میں لوٹ آیا تھا۔ ان دونوں کی وہ رات جاگتے ہوئے لیکن الگ الگ کمروں میں گزرنے والی تھی۔ میں مناہل جمال، ایک امیر ماں باپ کی بیٹی، جسے ہر چیز مانگنے سے پہلے مل گئی، حتیٰ کہ ہارون جیسا شوہر بھی بنا کوئی تکلیف اٹھائے اس کی جھولی میں ڈال دیا گیا، لیکن میں نے اس خدا کا اس طرح شکر ادا نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا۔ میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات تھی کہ یہ سب تو مجھے ملنے ہی چاہیے، جیسے یہ سب میرا حق تھا، لیکن آج جب اپنے شوہر کو شکوہ کرتے سنا، ایسا لگا جیسے میں کچھ بھی تو نہیں ہوں۔ تہی دامنی کا احساس بہت شدید تھا۔ میں جو سمجھتی تھی دنیا کو فتح کر چکی ہوں، اچانک خالی ہاتھ بیٹھی سوچ رہی تھی کہ میں کیا ہوں۔ میرے ماں باپ نے پسند کی شادی کی تھی، جس پر میری دادی کو بہت سارے اعتراضات تھے۔ ان کے خیال میں شہر کی لڑکی ان کی آنے والی نسل کی اچھی تربیت نہیں کر سکے گی۔ اسی طرح میری ماں کے دل میں پہلے دن سے ایک خوف بیٹھ گیا کہ کہیں میری دادی کی کہیں بات سچ ثابت نہ ہو جائے۔ میری ماں نے دوسری ماں سے بڑھ کر مجھ پر توجہ دی، لیکن اس کے باوجود وہ مجھے باہر کے ماحول کے اثرات سے مکمل طور پر محفوظ نہ رکھ سکی۔ ان کی ناپسندگی کے باوجود میں جینس ٹی شرٹ بہت شوق سے پہنا کرتی تھی، کیونکہ جس ماحول میں میں نے آنکھ کھولی تھی وہاں یہ خاص عام سا لباس تھا۔ مجھے اپنے ماں باپ سے قدرتی لگاؤ تھا، اور کچھ ان کی مکمل توجہ بھی مجھے حاصل رہی، اس لیے میں ان کے اور بھی قریب ہوتی چلی گئی۔ اور میری ماں نے انجانے میں میرے اندر ایک بات اتار دی کہ میں نے دادی کے سامنے اچھا بننا ہے، ویسے اچھا جس کو میری دادی اچھا سمجھتی ہوں۔ مجھے نماز پڑھنی ہے، کیونکہ دادی کو نماز پڑھنے والی پوتی چاہیے۔ میری ماں نے مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھوں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ انہوں نے ہمیشہ دادی کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی اور مجھ میں یہی سکھایا۔ اور آج اپنے شوہر کو فون پر باتیں کرتا سن کر پہلے تو مجھے شدید غصہ آیا، پھر خود غرضی کا شکار ہونے لگی، اور اب جب میں رو دھو کر تھک چکی ہوں تو میں یہ سب سوچ رہی ہوں جو شاید بہت پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ میں آپ سے باتوں میں لگی ہوئی ہوں اور مجھے فجر کی اذان سنائی دے رہی ہے۔ اب مجھے جانا ہوگا، مجھے جا کر اپنے شوہر کو نیند سے جگانا ہے، جس طرح آج ان کی باتوں نے مجھے غفلت کی نیند سے جگایا ہے۔ وہ ساری رات مناہل کا انتظار کرتا جانے کب صوفے پر بیٹھا بیٹھا لڑک گیا، اور اب گہری نیند میں تھا۔ مناہل کمرے میں داخل ہوئی تو ہارون کو اس طرح سوتے دیکھ کر اس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ ہارون جاگ جائیے، صبح کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، وہ اس پر جھکی نرم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ پہلی پکار پر ہی ہارون آنکھیں ملتا اٹھ بیٹھا تھا۔ آئی ایم سوری پلیز، میرا مطلب تمہاری انسلٹ کرنا نہیں تھا، میں تو بس تھوڑا پریشان ہو گیا تھا کہ میں نے ساری زندگی جس لڑکی کی تلاش کی وہ مجھے نہیں مل سکی تھی، لیکن میری باتوں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا نا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ اسے اپنے قریب بٹھاتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے ہوئے وضاحت دیتا معافی مانگ رہا تھا، اور اس کے یہ انداز مناہل کو شرمندہ کر رہا تھا۔ آپ سے مجھے صرف اتنی شکایت ہے ہارون کہ آپ نے وہ سب باتیں جو مجھے کہنی چاہیے تھیں وہ ایک تیسرے شخص کو کہیں۔ مناہل نے اسے دیکھتے ہوئے شکوہ کیا تو وہ مزید شرمندہ دکھائی دینے لگا۔ مجھے لگا کہ اگر میں تم سے کہوں گا تو تم ناراض ہو جاگی، اس لیے مبشر سے شیئر کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ آئی ایم سوری، وہ شرمندہ لہجے میں پھر سے معذرت کرنے لگا۔ ایسی بار بار سوری کر کے مجھے شرمندہ نہ کریں، آج کے بعد میں ویسے ہی رہوں گی جیسی بیوی آپ کو پسند ہے، مناہل نے یقین دلاتے لہجے میں کہا۔ صرف میری خوشی کے لیے خود پر جبر کرو گی؟ ہارون نے سوال کیا۔ نہیں، آپ کے لیے نہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے ویسی بن کر رہوں گی جیسا کہ ایک مسلمان عورت کو ہونا چاہیے۔ پتہ ہے ہارون، میں نے پہلے ہی یہی سوچا تھا کہ آپ کے لیے آپ کی پسند کی انسان بن کر رہوں گی، پھر اچانک مجھے خیال آیا میں کیسی انسان ہوں جو ایک انسان کے لیے تو خود کو بدلنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اس انسان سے دور ہو جانے کا خوف ہے، لیکن مجھے خدا سے دور ہو جانے کا کوئی خوف نہیں، اس کے ناراض ہو جانے کا بھی کبھی خیال نہیں آیا۔ اگر جو آپ مجھے ناپسندیدہ بیوی کہہ کر چھوڑ دیں تو میں جیسے کیسے جی لوں گی ہارون، لیکن اگر میرے خدا نے مجھے ناپسندیدہ کہہ کر چھوڑ دیا تو میرا کیا ہوگا؟ بس اسی لیے میں نے خود کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ میرے رب کی رضا چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر میرے رب کی رضا میرے ساتھ ہوئی تو آپ چاہے تب بھی مجھے دکھ نہیں دے سکیں گے۔
वो आखिर में मुस्कुराते हुए कह रही थी और हारून पूरे ध्यान से उसे सुन रहा था। तुम हूबहू वो नहीं हो जो मैंने समझा था, लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत है। जितनी पहले दिन महसूस की थी उतनी ही अब भी है। हाँ, बस हैरान हुआ अपनी गलतफहमियां दूर करने पर। हारून मुस्कुराते हुए उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था। आपको मशरकी लिबास बहुत पसंद है? मनाहिल ने अचानक सवाल किया। बहुत ज़्यादा, हारून ने फ़ौरन जवाब दिया। आइंदा मैं वही पहनूंगी जो आपको पसंद है। मनाहिल उसके कंधे पर सर रख कर कह रही थी। नहीं, तुम अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारो ताकि मेरे साथ खुश रह सको। तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम किसी कैद में हो। हारून ने प्यार से उसके बात सहलाते हुए कहा। आपकी कैद में आज़ादी से ज़्यादा खुशी और सुकून है। मनाहिल ने खुलकर अपनी चाहत का इजहार किया। सुनो मनाहिल, मेरा दिल, मेरी मोहब्बत, मेरी ज़िंदगी सब तुम्हारे लिए हैं। हारून ने उसे अपने बाजों के हिसार में लेते हुए कहा। मुझे खुद से बढ़कर आप पर यकीन है। आई लव यू। मनाहिल ने उसके सीने में सिमटते हुए एतराफ़ किया तो हारून ने झुककर उसके होंठों पर अपने प्यार की मुहर लगा दी।